everyone. Let's start exercise 4C. Okay. So in this first question is you have to construct a equation. Construct two equations having solution x is equal to 2. We have given a solution and we have to make a equation. मतलब question को उल्टा करना है. So for this we will do one thing. So we will add or multiply anything by this number. So add, पहले multiply कर दो. Multiply both sides by any number. Let's say 3. So it becomes 3x and it becomes minus 6 because we have multiplied. Now add any number 1 on both sides. So if you add 1 on both sides, it becomes this. It means after solving this you get this answer. So this is your one of the equation. You have to make minimum 2 equations. So this is first part. So for second equation you can multiply add by any other number or multiply any other number. So x is equal to minus 2 multiplied by now any other number multiplied by 4 या 2 कर लो. It is 2x is equal to minus 4. Then add or you can subtract also. You subtract कर लो. You can subtract any number. Subtract minus 1 on both sides. So when you subtract minus 1 on both sides, it becomes 2x minus 1 is equal to minus 4 minus 1. मतलब this is your second equation. So understood how to make the equation from the answer. Add any number or multiply any number by the given equation. So second question is same. We have to make 3 equations with the y is equal to 1.3. So let's start third question. In third question, we have given that thrice a number when increased by 4 gives 40. मतलब we have to convert this question into mathematical form. Statement को mathematical form. So let the number is x. We don't know the number. Let the number is x. So thrice a number when increased by 4. Increased by 4 means plus 4 gives 40. Gives mean is equal to 40. ठीक है, समझ आ गया? Solve करना है? Yes. So solve कैसे करेंगे? Take this 4 on right hand side. It will become transpose. So the 3 is multiplied with x ऊपर जाके divide हो जाएगा. So the value of x is 12. That number is equal to 12. ठीक है? Check करना है? कर दो. If you thrice a number and add 4, क्या आंसर आता है? 40 आ गया ना? ये लो हमारा आंसर ठीक है. It means our answer is correct. Okay? So similarly, you can do the fourth question by yourself. ठीक है? Fifth question भी same ही है. I am making equation only. Find the number when added to itself, added to its half. Let the number is x. क्योंकि number को not know. So according to question, he said find the number when it is added to its half. इसी के half में add करें. इसी के half में add करें number को, तो we will give 42. This is your equation. Now solve it and find the value of x. ठीक है? Sixth question भी ऐसे ही है. Find the number. Number is the same x. Find the number when multiplied with 4. So according to question आ गया 4x multiplied with 4 exceed itself by 36. ये जो 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये अपने आप से ही 36 से ज़्यादा होगा. मतलब फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद 4. जब 4 से मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ? एक्सीड इटसेल्फ बाय 36. अपने आप से ये 36 से ज़्यादा हो गया. समझ आ गई क्वेश्चन? नाउ दिस इज योर इक्वेशन. सॉल्व इट. सॉल्व कैसे करेंगे? टेक दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसपोज कर लो, माइनस हो गया, एक्स टर्म टुगेदर करो एंड इट इज 3x
x is equal to 3x divided by 3 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, when it goes on right hand side it will divide, तो आंसर इज 12, अगेन 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 7th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट द नंबर इज x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, when 12 is subtracted from a number, from a 7 times a number, right? 12 is subtracted from 7 times a number is equal to the 5 times a number, 5 times the sum of number and x, number and 2। 5 times किसका करना है, नंबर एंड सम ऑफ नंबर एंड 2 का 5 टाइम्स, मतलब हम 5 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइंड द नंबर, हाउ टू फाइंड द नंबर, बाय ओपनिंग द ब्रैकेट, लाइक टर्म्स टुगेदर, ये इधर आके माइनस हो गया, पहले उधर जाके प्लस हो गया, सो 2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 11, ये आपका आंसर आ गया 7th का। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी सेम है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। सो लेट्स डू 9th क्वेश्चन। इन द 9th क्वेश्चन बच्चे वी हैव गिवन दैट द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। सो कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 1 2 3 से जैसे, बट हो ऑड, तो इफ सपोज करो फर्स्ट नंबर ऑड नंबर पॉजिटिव 1 है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, यस 3, नेक्स्ट 5 एंड सो ऑन, यही हो गया ना। तो बट ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का टोटल क्या है। अब बट प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो द नंबर, सो लेट द नंबर इज x, लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर इज, अगर उसको x मान लो ये x है, जो मानना है वो x है, तो बाद में कितना ऐड किया कि 3 आ गया, 2 ऐड किया ना, तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x में 2 ऐड कर दो, समझ गए। सो इफ द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इज x, देन सेकंड वुड बी x plus 2। ओके, सो नाउ ही इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the sum of two consecutive positive odd, इन दोनों का टोटल sum of two consecutive odd positive integer is कितना दिया, 144। so now you can solve the equation very easily, 2 उधर जाके माइनस हो गया, 142 एंड x आ गया 71, समझ गए। तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव आ गया 71, फर्स्ट नंबर आ गया 71, सेकंड आ गया 73। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 10th क्वेश्चन। सो इन 10th क्वेश्चन डिवाइड 84 इनटू सच दैट, सो पहले तो 84 को डिवाइड करना है। अब वी डोंट नो कि 84 के कितने पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट्स को पता ये नहीं पता कितने कितने हैं। सो लेट द फर्स्ट पार्ट इज x, let the first part of 84 is x, तो सेकंड क्या होगा, अगर 84 में से फर्स्ट पार्ट 10 है तो सेकंड क्या होगा 74, समझ गए ना, दोनों का टोटल 84 ही होगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड क्या होगा 84 माइनस x, समझ गए इक्वेशन। नाउ इक्वेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 84 into such that 1/4 of first part x is equal to 1/3 of second part, समझ गए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सो नाउ सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, और इधर आगे प्लस हो गया, तो 7x इज इक्वल टू
336, एक्स की वैल्यू आ गई 336 डिवाइडेड बाय 7, so x is equal to 84, sorry 48, the value of x is 48, so first part आ गया 48, second part आ गया 84 minus 48, that is 26, ठीक है। चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या है बच्चे, सॉरी ये आपका 10th था, नाउ 12th 11th क्वेश्चन। अब बैग में से 1, 2 और 5 और 10 के कॉइन्स है, द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड 8 टाइम्स द 2 रुपी कॉइन। तो मतलब सबसे कम डिनोमिनेशन किसकी है, 1 रुपी की। तो अब हम क्या करेंगे, 1 रुपी को x मान लेते हैं, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है 10 रुपी कॉइन को, तो 10 रुपी कॉइन को x मान, हिंट भी गिवन है, वैसे तो हिंट गिवन है इसका, ये देखो बुक में गिवन है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 10 इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी ये क्वेश्चन बन जाएगी, ये वाली जो बुक में गिवन है। सो सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपकी नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस आ जाएंगी। लेट्स डिस्कस द 12th क्वेश्चन। ओके, सो 12th क्वेश्चन है द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज फेंस्ड विद फेंस मतलब तार लगाते हैं साइडों में, 150 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लॉट इफ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ है तो हमें डायमेंशन बताओ, एंड फेंस का मतलब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 150 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 and 2b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 12 प्लस b, पेरीमीटर गिवन है 150, लेंथ गिवन है 2b, तो b को b रहने दो, 150 इज इक्वल टू 2 into 3b, 2b plus b 3b, so solve it, 6b is equal to 150, तो b would be, b की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 25, सो ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर एंड लेंथ कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स b मतलब 50 मीटर। ओके, समझ गए। सो नेक्स्ट आ गया बच्चे आपका एज वाला क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या है, वी हैव गिवन दैट मिसेस जैन इज 5 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। फाइंड क्या करना है पहले, ये देखो, फाइंड द एज ऑफ मिसेस जैन। तो मिसेस जैन और डॉटर की एज को हमने x माना है, तो सोचना है किसको x माना है, बिकॉज वी हैव गिवन कि मिसेस जैन जो है वो 5 टाइम्स ओल्ड है डॉटर की, तो इफ द डॉटर की एज x है, ठीक है, तो मिसेस जैन ने एज वुड बी 5x क्योंकि 5 टाइम्स है। नाउ ही सेड 6 years लेटर, 6 साल बाद, 6 years लेटर, 6 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद इट वुड बी द एज ऑफ डॉटर वुड बी, पहले तो लिख लो, एज ऑफ डॉटर वुड बी x plus 6, क्योंकि 6 साल ऐड हुए हैं तो वी विल ऐड 6, और एज ऑफ मिसेस जैन 5x plus 6। ये पहले ये समझा गया कि दोनों के एज में 6 को ऐड किया क्योंकि आफ्टर 6 years है। शी विल बी मतलब जो मिसेस जैन है, शी विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। जो मिसेस जैन है 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद मिसेस जैन की दिस वन 5x plus 6 इट वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स, थ्राइस 3 टाइम्स क्या है ना, 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। डॉटर की एज कितनी है x plus 6। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एज की क्वेश्चन को पहले क्या करना है, आपने ये सोचना है कि दोनों में से x किसको मानना है, ठीक है। अगर उसकी एज को डॉटर की एज को x मानेंगे तो वो उसका 5 टाइम्स ओल्ड हो जाएगा, उसके बाद 6 साल ऐड करके ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इधर आके माइनस हो गया, ये उधर आके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो एज ऑफ डॉटर की एज आ गई 6 years
ये प्रेजेंट एज है एंड मिसेस जैन की एज आ गई 5 into x मतलब 5 into 6 30। क्लियर है कैसे करते हैं एज वाला क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट अगेन एज वाला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इफ यू फील डाउट यू कैन आस्क। नाउ लेट अस डिस्कस द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है, द एज ऑफ आशा एंड सुषमा इन द रेशियो। जब भी रेशियो में गिवन हो तो उसके साथ x लगाओ। सो लेट द एज ऑफ आशा, let the age of Asha is जो कि रेशियो के गिवन आशा की 7, तो 7x और सुषमा की हो जाएगी 2x। समझ गए ना, जब भी रेशियो में एज गिवन हो तो पुट इट x। नाउ ही सेड 8 years hence, 8 साल बाद, सॉरी हेंस का मतलब होता है एगो, 8 years hence मीन्स 8 साल पहले, 8 year hence द रेशियो विल बी 5:2, ठीक है ओके। बट इसमें बच्चे जो हेंस का मतलब मैंने बताया, इसका मतलब यही होता है कि बाद में होता है हेंस का, तो वी विल डू इट बाय प्लस, क्योंकि हेंस का मतलब होता है कि बाद में, ठीक है। पहले मैंने ठीक ही बोल रहा था। सो इसकी इक्वेशन बनेगी after 8 years, hence means after 8 years, ठीक है। the age of Asha would be 7x plus 8 and age of Sushma would be 2x plus 8। इनकी आपको कह रहा है the ratio of their age would be 5:2, मतलब इनकी जो रेशियो होगी, एज की रेशियो होगी वो होगी 5:2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पुट इट देयर। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कर दो, चलो 14x plus 16 10x plus 40, तो इधर आके माइनस हो गया 4x, इधर आके माइनस हो गया 24, x की वैल्यू आ गई 6, तो एज आ गई 42 एंड 12, ठीक है हो गया ना सॉल्व, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट a number consists of 2 digits whose sum is 8। so let the 2 digit number, अगर हमें 2 digit number नहीं पता तो ये 2 digit number है, दोनों का टोटल 8 है। so let the unit place digit है जो यूनिट प्लेस, ये 1th place, यूनिट प्लेस, 10th place है ना, ऐसे। तो यूनिट प्लेस को आप x मान लो, let the unit place digit is x। अगर दोनों का टोटल 8 है, दोनों का टोटल 8 है, तो 10th प्लेस क्या हो जाएगा, सोच के देखो ना, ये दोनों का टोटल 8 है, ये 3 है तो ये 5 होगा, तो दोनों का टोटल 8 होगा। अगर ये x है तो वो क्या होगा 8 minus x, तभी 5 आएगा ना। अगर ये 3 है तो ये 8 minus 3 है, अगर ये x है तो ये 8 minus x होगा, समझ गए। सो ये होगा 8 minus x। अगर ये नंबर है 10 यूनिट पे ये है, 10 पे ये है, तो नंबर क्या हो गया हमारा, अगर 53 है 53 को कहते हैं राइट लाइक दिस, तो 5 into 10 plus 3 into 1, तो ये 10th प्लेस पे, ये 1st प्लेस पे है। सिमिलरली दिस इज 10th प्लेस, so we will multiply by 10 and this is 1st प्लेस, so we will multiply by 1। तो इसको सॉल्व करो तो आपका नंबर आ गया 80 minus 10x plus 1x, इसको और सॉल्व करो minus 9x, यहाँ तक आ, तो नंबर आपका ये बन गया। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, ये तो हमने बस यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और नंबर अभी लिखा है, बस दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, चलो इस नंबर में 18 ऐड करते हैं, वी विल ऐड 18। अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, द डिजिट गेट इंटरचेंज,
जो टेंस प्लेस है वो वंस पे चला जाएगा, वंस वाला टेंस पे आ जाएगा। इट मीन तो नंबर क्या बन जाएगा, पहले तो इंटरचेंज डिजिट फाइंड करके देखो, ये वंस है, ये टेंस पे चला गया, टेंस वाला वंस जाएगा। तो इट मीन x into 10 प्लस 8 माइनस x into 1, ये बनेगा इंटरचेंज हो गए। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 80 प्लस 18 98 माइनस 9x इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x, इसको सॉल्व कर लो, 10 माइनस x 9x प्लस 8, इधर आ गया 98 माइनस 9, तो 9 बदले जाओ, ये वाला 9 बदल जाओ, 98 माइनस 9 इक्वल टू 9x प्लस 9x, जो उधर जाके ये ट्रांसफर लोगे प्लस बन गया। सो माइनस करो, 89 आया, यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक दिस, यस गलती मिल गई। तो हियर इट इज 8, तो नीचे भी 8 ही आना चाहिए, ठीक है ना। सो 8 माइनस 98 माइनस 8 इज 90 इक्वल टू 18x, सो x would be equal to 90 upon 18, 5 आ गया, तो x की वैल्यू 5 है, ये तो वही नंबर आ गया मैंने सपोज किया है ना। चलो x की वैल्यू 5 आ गई, सो इट मीन यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 5 है। चलो इसको छोड़ो, सीधा नंबर में पुट कर दो, बिकॉज वी वांट अ नंबर, तो नंबर में सीधी x की वैल्यू पुट कर दो, 80 माइनस 9x मतलब 9 into 5, so 80 minus 45 which is equal to 35, तो आपका जो नंबर है that is 35, दोनों का टोटल 8 है ना, तो इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 2 लेस है, सो लेट द डिनोमिनेटर इज x, let the denominator is x, the numerator will be x minus 2 क्योंकि 2 लेस है इस एंड। नाउ इफ मान लीजिए है तो बहुत सारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये फ्रैक्शन जो है वो हमारी ये बनेगी ना x minus 2 upon x, now according to question if one is added to both numerator and denominator then it becomes मतलब is equal to 2 upon 3, ये बन गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई like terms together, x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू 5 का फ्रैक्शन क्या होगी, क्या थी फ्रैक्शन, ये वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x मतलब 5 माइनस 2 अपॉन 5, 3.5 इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 18 क्वेश्चन में क्या बचे, एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन, टेल मी, यस वेरी गुड, whose sum is 90, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 है, तो लेट द क्वेश्चन देखो 18, लेट द फर्स्ट एंगल इज x, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस x, क्योंकि अगर फर्स्ट 10 है तो दूसरा 80 होगा, अगर फर्स्ट 40 है तो दूसरा 50 होगा, बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल हमेशा 90 होता है। सो इफ द फर्स्ट इज x तो नेक्स्ट वुड बी 90 माइनस x। नाउ वी हैव गिवन दैट इनका जो डिफरेंस है माइनस करके जो है फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल दैट इज इक्वल टू 20, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो एंड फाइंड द एंगल। अगला भी सेम है, ट्रायंगल की 2 इक्वल साइड्स गिवन है, चाहे एक्सिस फॉर्म में है बट दे आर नॉट सीम्स टू बी इक्वल, बट एक्चुअल में दे आर इक्वल। आप एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करोगे कि दे इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। एंड थर्ड साइड इज गिवन टू यू 7x minus 4, we have to find the perimeter, बट हमें दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड 2 साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फर्स्ट साइड सेकंड साइड इक्वल है ना, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लाइक करके कहता है ये बोले जाओ 8 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 2 आ गई। सो इफ यू पुट टू साइड्स वुड बी, फर्स्ट साइड आ गई x प्लस 6 मतलब 8 सीधे लिखो, सेकंड साइड आ गई 5x माइनस 2 मतलब 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, ये का सेम है ना। और थर्ड साइड है 7x माइनस 4 मतलब 7 इंटू 2 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितनी होगी 10। ओके, सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तीनों को ऐड कर दो। पेरीमीटर हो गया 8 प्लस 8 प्लस 10 16 26 सेंटीमीटर जो भी है सेंटीमीटर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 20th क्वेश्चन। अ बुक सेलर बाय 1000 बुक्स, बुक सेलर ने 1000 बुक्स बाय की, खरीदी, उसमें से जिसका मार्केट प्राइस 24 है, ठीक है, उसने कुछ बेच दी 24 के ऊपर और बाकी बेच दी 22.5 के ऊपर। तो हमने फाइंड आउट करना है कि दोनों कितनी कितनी उसने सोल्ड की एंड टोटल ऑफ द सेल इज गिवन आल्सो। सो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स है ना, हाँ जी, लेट द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग प्राइस, जिसका प्राइस 24 है उसको आप x मान लोगे। हमारे पास 24 रुपीज़ की जो बुक्स है वो हमें उसने x सोल्ड की, तो बाकियों की कितनी सोल्ड की होगी, टोटल हमें पता है, वी आर टोटल 1000 बुक्स, टोटल में से x उसने सोल्ड की 24 रुपीज़ की, तो 22.5 की कितनी होगी 1000 माइनस x। ये सब समझ आ गया ना, क्योंकि 1000 में से अगर मैंने 100 बुक्स 24 रुपीज़ में सेल की तो बाकी 900 ही बचेगा ना, 1000 माइनस 100, तो इसलिए मैंने 1000 माइनस x लिखा यहाँ पे। समझ आ गया ना ये चीज। चलो उसके बाद कह रहा है टोटल सेल इज ऑल्सो गिवन, इट मीन 24 रुपीज़ की जो बुक्स है वो x है, हमें पता लग गया, और 22.5 रुपीज़ की जो बुक्स है वो हमें पता लग गया 1000 माइनस x है। इनका जो टोटल आएगा वो तो टोटल सेल के इक्वल ही आएगा, तो टोटल सेल हमें गिवन है 23,670। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपका आ जाएगा 24 रुपीज़ की कितनी बुक्स है और 22.5 की कितनी बुक्स सोल्ड हुई। ओके एवरीवन, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड इफ यू फील एनी डाउट you can ask me also. Okay, so thank you.